Good morning. I welcome you all in today's seminar. Before we start the meeting, request everyone to please keep your phone on silent mode and raise for our institute motto followed by national anthem. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की welcome again, friend. Friends, it is always enriching when professionals comes together to learn, unlearn and upgrade because of our profession. Compliance is not enough. Quality and credibility are paramount. Friends, today's topic, peer review, is extremely relevant in today's regulatory environment. Peer review is not merely a procedural requirement. It is a quality assurance mechanism, a confidence builder for stakeholders, and a mirror that helps us introspect and improve our professional practice. We are privileged to have with us our most eminent speaker, CA Ankush Gupta, a highly respected professional
known for his deep understanding of professional standards and practical approach to complex subjects. His experience and insights will surely help us understand peer review that just from a theoretical lens, but from a practical and implementable perspective. One thing I want to share with you, Ankush Gupta is not only a speaker, he is also our and my best friend. और इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्ती पुरानी है पर विचार सदा ही नवीन, मंच बदला है, आज भूमिका हुई है नवीन। कहने को मित्र है हमारे, कहने को मित्र हैं हमारे, पर आज गुरु समान ज्ञान की इस यात्रा में साथ निभाए महान। In this word, I request our member CA Bhavesh Shah to give a brief introduction of our speaker, CA Ankush Gupta. Good morning, friends. Ankush Gupta is the proprietor of Ankush Gupta and Associates with a rich experience of 2 decades in audit, tax, and assurance services. He has been empaneled as a peer reviewer from last 12 years and has successfully done peer review of more than 40 CA firms. Ankush is a member of a committee of MSME startups of the WIRC for financial year 25-26 and is a member of a CSR committee of WIRC for 4 consecutive years. That is from 21 to 22 to 24-25. He is also empaneled as a career counselor of ICAI and has successfully organized the career counseling session for the students in the colleges. Ankush is introduced in Thakur College Science and Commerce as an industrial and corporate expert in the Board of Studies of Management Studies BMS. He is also founder of AGPL Ankush Gupta Premier League in a cricket league exclusively for CA members and profession in industry. Ankush is truly believe in giving back the society and has sponsored a school fees of more than 150 students under Padhega India, Badhega India initiative. Those who knows him personally knows that he is humorous and fun-loving person and living life to the full. With this brief introduction, I proposed to give him a memento by our past conveyors and members. Subhaji, Now, sir, mic is your. One thing, friend, reference manual is available for all of you only on rupees 300 concessional rate. Market price of the reference manual is 999. Limited books are available. Those who want to take, please. पिकनिक का पूछ लें? पिकनिक का हाँ पिकनिक का बोलिए आप।
11 तारीख को पिकनिक है, सब लोगों ने, कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है? नहीं किया वो हाथ उठाए। बहुत सारे हैं। ये बंद होने वाला है। बंद होने वाला है, कन्वीनर बोल रहे हैं। 200 से ज्यादा हो गए सर। 200 से ज्यादा, 5 बस तो हो गई, एक बस की और उनकी इच्छा है, क्योंकि चार्ज तो नॉमिनल रखा है, बस का चार्ज ले रहे हैं, खाली बस का चार्ज ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट रहेगा, तो जो दोस्त वांट टू कम टुगेदर ज्वाइन अर्ली, तो कंप्लीट करें 6 बस। या अंकुश, ओवर टू अंकुश। Very good morning to everyone. Thank you, Bhavesh Bhai, for such a wonderful and brief introduction about knowledge. Of course, everyone out here knows me. Either you have seen me out because I am always an outstanding student standing out, or you might have seen me dancing or playing cricket or doing various other activities. So, of course, this is my first session as a speaker in the esteemed JB Nagar Study Circle. My own study circle, I have been member of this study circle since last 2 decades. जब क्लियर बना था पहला स्टडी सर्कल इसी में मेंबर बना था और इसी में कंटिन्यू हूँ. So of course I am very happy, excited, but at the same time I am very nervous because the crowd knows me out here. So of course it's a privilege standing here in front of you all. This is my 5th session as we are in December month itself, and closing my JB Nagar for the month of December. The esteemed south movement for me. It is like no, JB Nagar में speaker बनना है तो पहले रणजी खेलना पड़ता है. तो बहुत रणजी खेला, तो then finally I got a call in the national ball. So I'm standing here in front of you. Before starting the session, we are running a bit late, but still, I don't want to miss this opportunity. So before starting the session, I would like to thank few members. जीता बहुत बड़ा हाथ है, मैं आज भी हूँ यहाँ खड़ा हूँ. उसमें of course the first one is कैलाश जी कटाउल्ला जी, our own convener of this मेरा कभी सकते हैं. मैं मेरा अपने सबके लिए है, लेकिन मेरे प्रिय मित्र है. एंड कैलाश जी, जेबी में जब से आपने संभाला है तब से लोग सेशन कम सुनने आते हैं, आपकी शायरी ज्यादा सुनने आते हैं सर. ठीक है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर. एंड ऑफ कोर्स आपने आज जो है बहुत हाई रेस कर दी है आने वाली कन्वीनर के लिए. परमार जी ऑलवेज नाइस हैंड फॉर मी. मैं इनको लाइन्स की वजह से जानता हूँ, जब ये गवर्नर में बने थे अभी इनका स्लोगन था फ्रॉम हार्ट टू हैंड टू हार्ट, वो इनका स्लोगन था. तो मैंने इनको पहली बार देखा था भागदा सॉल में, मैं बोला अच्छा ये अपने गवर्नर है, और तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स कहीं भी करते हैं या नानिज्म हो या कुछ भी हो, he is always there. His office is always open for me and for everyone. Bhavesh Bhai, thank you, Bhavesh Bhai. He has always been a very good friend and support system for me. And last but not the least, Mahesh ji, Sagaria ji. I lost my father 2 years back, but Mahesh ji stood by me like a father, like a pillar. ये मेरी मेंटरिंग भी करते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा. मैं जिस दिन शेव करके नहीं आता हूँ ये डांटते हैं कि आप शेव करके नहीं आए हैं, या जिस दिन ड्रेसअप प्रॉपर्ली नहीं होता उन दिन मुझे डांटते हैं कि आप ड्रेसअप प्रॉपर्ली होकर नहीं आए. एंड ये मुझे आईपीओ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा आईपीओ है जिसको मैं ओवर सब्सक्राइब करूंगा. तो थैंक यू महेश जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर महेश जी. And you are very influential in this JB Nagar study circle also. With the energy level, as on date, we cannot match the energy level what he has for all the activities. And the best part is he is always excited for all the activities of JB Nagar and always lead by running. And of course, many of my friends, professional colleagues, associates, thank you very much. आज मैं जो भी हूँ आपको की वजह से हूँ, because of you all.
आप लोगों के सपोर्ट की वजह से भाई थैंक यू, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग टू द सेशन, पीआर रिव्यू। पीआर रिव्यू बहुत जन समझते हैं, अपन जो में बैठे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचते हैं कि ये कंपल्सन है, इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है एंड प्रेशर है, but believe me, peer review is more of an opportunity because from this peer review rather than any disadvantage. peer review अपन अगर अपनी फॉर्म अगर peer review है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टेट्स में जाएंगे, अगर स्टेट्स सब अवेलेबल है, WRC की वेबसाइट में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, अगर आप स्टेट्स में जाएंगे तो हार्डली 6,000 to 7,000 forms are peer review out of I think 35,000-40,000 registered forms. So it itself is a huge opportunity. Many things which are non-peer reviewed form cannot do can be done by a firm which is peer reviewed, like audit of listed companies or IPO certification or any SEBI regulation. For all these things, you require your firm to be peer reviewed. And the best part about doing the audit of listed company is the compulsory 5 years में rotation है ही है। तो रोटेशन है तो दूसरी फॉर्म जो आएगी ऑडिट करने, दैट हैज टू बी क्लियर। तो सपोज अगर आज आप लिस्टेड कंपनी नहीं करते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई कनेक्ट या कोई एसोसिएट लिस्टेड कंपनी करता है, तो 5 इयर्स के बाद अफकोर्स ही विल आस्क यू मेरी फॉर्म क्लियर यू है तो लेट मी अपॉइंट यू, जिससे कि क्लाइंट भी नहीं जाएगा, साथ में रहेगा एंड so please take the peer review as a opportunity and of course 2 years down the line जितने भी members इस हॉल में बैठे हैं, you all have to get our form clear। अभी 3 पार्टनर कंपल्सरी हो गए हैं, बाद में 2 पार्टनर हैं, बाद में फिर 22 को करके आने की बात है, तो there is no escape। अभी just अभी if you are not doing our form clear review, we are just buying time कि चलो अभी नहीं करेंगे। Irrespective of whether you are doing audit of listed company or bank audit or anything, your firm has to get peer input in the coming over the years। तो मैं आपको एक peer review की जर्नी में लेके जाऊंगा, एक peer review कैसे होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। And I hope जब मेरा सेशन खत्म हो तो many of you apply for peer review। तो first basic ये है कि peer review is only and only for assurance service। So what is not covered in assurance service is consultancy, income tax returns, GST returns, filing tribunals, ये सब assurance service में नहीं आता है। What is assurance service in short, where we are finding, or for a better understanding what is assurance service, जहाँ भी अपन ने साइन किया है या जहाँ भी यूनियन जनरेट हुआ है, जिस चीज में अपन ने जिस प्रोफेशनल सर्विस में अपने यूनियन जनरेट किया है, दैट इज लाइक एश्योरेंस सर्विस। तो आई हैव नोटेड सम पॉइंट्स जो एश्योरेंस सर्विस में नहीं आते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, एंगेजमेंट टू प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and many others, engagement for due diligence। तो peer review एक फॉर्म है, मेरी फॉर्म है, मेरी फॉर्म बहुत सारे काम करती है इंक्लूडिंग ऑल दिस प्लस अश्योरेंस सर्विस। तो peer review जो होता है वो सिर्फ अश्योरेंस सर्विस का होता है, ये सब सर्विसेज दूसरे रिव्यू में नहीं है, ऑल दिस सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम। तो many of us think कि peer review is documentation, document बनाती। I'm doing consultancy for peer review and I get many calls from many of the members कि अंकुश peer review assurance service जो है, audit जो है, हमने एकदम प्रॉपर किया है, हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं। ये अपन जितने भी मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पे सब लोग एग्री करेंगे कि सबकी प्रॉब्लम एक ही है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि peer review जो है, that is not only about the documents, not only about the working papers। अपन जो वर्किंग पेपर की बात कर रहे हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट है, peer review मतलब विजुअल आएगा, वर्किंग पेपर चेक करेगा, अपने
वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ओनली 20% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू कैन से, और 20% ऑफ द थिंग्स जो रिव्यूअर आके चेक कर लेगा। पीआर रिव्यू की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो अपना अल्मा माटर आईसीएआई कैपिटल अकाउंटेंट फॉर्म से क्या एक्सपेक्ट करता है? टू रिव्यू द सिस्टम and procedures put in place, system and procedure। ये कहीं पे भी डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? टू रिव्यू, रिव्यूअर आपके ऑफिस में आएगा चेक करने के लिए, तो क्या चेक करने आएगा? सिस्टम एंड प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस फॉर ensuring quality of assurance। तो पीआर रिव्यू इज मोर ऑफ क्वालिटी rather than documentation or rather than working paper। So please try to understand this thing. PR is more of quality systems। Office में system है कि नहीं? And one fantastic thing about our alma mater is कि अपने आपस में bifurcation कर लिया है, लेकिन ये छोटा चीज है, ये बड़ा चीज है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करता है, तो ट्रेडिशनल वर्ड का क्या है I don't know, but ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करता है, ये करता है। और alma mater वो एक ही चीज देखते हैं कि all are चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो प्रोप्राइटर से लेके टॉप सबसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। तो अगर मैं पीआर रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, मेरे पास सिस्टम कम होंगे या मेरी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे सबको क्वालिटी प्रूव करनी है। तो क्वालिटी प्रूव करने के लिए मेरे आगे की स्लाइड में पीएमपी बार आएगा, प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो फॉर एवरीथिंग अपन जो भी आगे डिस्कस करेंगे सब में अपनी फर्म के पास बी द प्रोप्राइटर, बी टू पार्टनर, बी टॉप 5, सबके पास पीएमपी, प्लान्स एंड पॉलिसीज होनी चाहिए। एंड दोस प्लान्स एंड पॉलिसीज इन टोटलिटी constitutes the major documentation work which are reviewable from and check in your office, rather than the documentation what we are doing। Yes sir, कुछ सिस्टम से कुछ है बताओ पूरा है। जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे पीआर रिव्यू का प्रोसेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुगेदर, वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑटोमेटिक क्रिएट होते रहेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने और क्यों बनाने। तो ये पूरा मैं आपको जर्नी में लेके जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि पीआर रिव्यू वाज ऑलवेज मैंडेटरी। आई थिंक 2010-11 तब से मैंडेटरी था, जब से if any CA firm is doing audit of any listed company, that firm had to be PR review। तो बहुत पहले से था, 5 तरह था, तो बहुत पहले से था। बट अभी इन्होंने एक फेज बनाया है जिसमें और 2 साल पहले रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विजन ये था कि ऑल द फर्म्स इन इंडिया शुड बी PR review। तो उन्होंने फेज बनाया। तो फेज में फर्स्ट फेज उन्होंने डाला 1 अप्रैल 2022 से कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटरप्राइजेस हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। मतलब इन शॉर्ट अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है तो 1 अप्रैल 2022 के बाद पहले भी, बट आई एम गोइंग टू दिस टू द फेज। तो अगर आपकी फर्म पीआर रिव्यू नहीं है, अगर मेरी फर्म पीआर रिव्यू नहीं है, तो वी कैन नॉट डू ऑडिट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। दैट वाज फेज 1। Then came the phase 2। phase 2 में अपन नीचे वाला पहले पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़ेंगे। प्रैक्टिस यूनिट रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विसेज हैविंग 5 or more पार्टनर्स। मतलब किसी फर्म में अगर 5 or more पार्टनर्स हैं तो दे कैन नॉट डू एनी एश्योरेंस सर्विस आफ्टर 1 July 2024। दैट मींस देयर फर्म as on 1 July 2024 their firm needs to be PR reviewed for doing assurance services, attestation services of any entity, be it private limited, be it listed, anything। And थोड़ा ऊपर उन्होंने पहले था लिस्टेड कंपनी फॉर फेज 1 में, फेज 2 में थोड़ा और कंप्रेस करने की कोशिश की है, थोड़े और मेंबर्स को पीआर रिव्यू में लाने के लिए की है। तो उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पहले था लिस्टेड कंपनी, सेकंड फेज में आ गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपीस और मोर या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस और मोर। तो ये इन्होंने थोड़ा सा अपना ब्रॉडन कर दिया कि अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी, बट अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो अगर मेरे पास कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मेरी फर्म पीआर यूज नहीं है, अगर मेरे पास कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका मैं ऑडिट करता हूँ और उसका इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा होता है, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है, तो माय फर्म नीड्स टू बी पीआर, ओनली देन आई कैन डू assurance service of those. Then came phase 3 जो 1 अप्रैल 24 में था, एक्सटेंड होते होते वो 1 जुलाई 25 को इंप्लीमेंट हो चुका है। एंड आई थिंक अपने मेंबर्स में काफी एक्सीडेंट हुए हैं इसमें पहले नीचे वाला पॉइंट, प्रैक्टिस यूनिट रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विसेज हैविंग 4 और मोर पार्टनर्स। तो फेज 1 में लिस्टेड कंपनी था, फेज 2 में 5 पार्टनर्स और मोर था, फेज 3 में 4 पार्टनर्स और मोर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अंकुश गुप्ता एंड एसोसिएट्स में 4 पार्टनर या 4 से ज्यादा पार्टनर हैं, तो मैं 1 जुलाई के बाद कोई भी अश्योरेंस सर्विस नहीं कर सकता, कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता, कहीं पे भी साइन नहीं कर सकता अगर मेरी फर्म पीआर रिव्यूड नहीं है। एंड ऊपर एक उन्होंने नया क्लॉज डाला, practice unit which proposed to undertake the statutory audit of entities which have raised funds from banks, financial institutions, which have raised funds from public or bank or financial institution of 50 crores or more. तो अगर मेरे को कोई ऑडिट करना था 24-25 का और अगर 31 मार्च को उस कंपनी ने पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लिया हुआ है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस 50 करोड़ के ऊपर है, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता था अनलेस अनटिल माय फर्म इज पीआर। एंड प्लस एक और क्लॉज उसमें डाला, वो सेकंड क्लॉज में बहुत एम्बिग्यूटी है, और ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बाकी बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी ले लिया, इंक्लूडिंग ट्रस्ट व्हिच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। तो अगर इनमें से आप अपन कोई भी ऑडिट करते हैं तो 1 जुलाई 25 के बाद we cannot render the professional services, I mean अपन अटेस्टेशन का अश्योरेंस का सर्विसेज नहीं दे सकते हैं unless and until our firm was PR reviewed। तो इसलिए 50 करोड़ वाले में एंड 50 करोड़ वाले में काफी एक्सीडेंट हुए कि जुलाई के बाद मालूम पड़ा कि अरे ये क्लॉज एप्लीकेबल हो गया है, फिर नए ऑडिटर ढूंढे गए, दोस्त ढूंढे गए, एसोसिएट ढूंढे गए, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। एंड नाउ वो जो मैंने यस सर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो इंक्लूड्स एवरीथिंग। Borrowing funds from the relatives, borrowing की बात नहीं चल रही है, आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो फर्स्ट कैटेगरी में तो फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इन जनरल पब्लिक There is no turnover criteria. Yeah. But my question. Yes, yes. No turnover criteria. No, okay. Statutory order of entity which is having 50 crores loans more than 50 crores. And for any body corporate. So if if I'm doing the order of a trust, public trust, but it is not having 50 crores loan, then too it is able. The trust in the second line which are covered under public interest entities. Doesn't Both are separate. और बीच में और इसमें बहुत एम्बिग्यूटी है, ये पब्लिक जो लास्ट सेंटेंस लास्ट लाइन है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, इसमें बहुत डिबेट्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है इसमें।
क्वांटम वगैरह नहीं किया था, इसके लिए काफी एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का एक जनरल मतलब मैंने भी ट्राई किया, तो मुझे सेशन लेना है तो मैंने भी पढ़ाई करने की ट्राई की थी। तो आप इसको जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पढ़ेंगे ना, तो उसकी डेफिनेशन इतनी ह्यूज है ना कि इट कवर्स, मतलब मुझे तो ये समझ में आया कि इट कवर्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ऑफ कोर्स सीनियर्स आर देयर, देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से तो इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। all NGOs, all Definitely covers all the CAs of what we wanted subclass. In my opinion, I may be wrong, but In my opinion. मैंने सबको यही ओपिनियन दिया था। मैडम कल घाटों पर भी नहीं थी मेरे सेशन के लिए। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये पीआरबीयू के दिसंबर में इतने सेशन क्यों हो रहे हैं, मेरे को क्यों हर जगह पे बुलाया जा रहा है, क्यों मेरा ये फिफ्थ सेशन है, बिकॉज 1 जनवरी 26 है, 3 दिन बाद से 4 दिन बाद से। पहले नीचे वाला पॉइंट, प्रैक्टिस यूनिट रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विसेज हैविंग 3 or more partners, not more than 3, 3 or more, 3 or more partners। तो इसमें आई थिंक काफी लोग कवर हो रहे हैं, पर उसमें ठीक है 3 और मोर पार्टनर्स हैं, अपने को कोई इमीडिएट अटेस्टेशन सर्विस करनी नहीं है, अपने को तो करना है वो फरवरी में, या तो कोई लिमिटेड रिव्यू है या कुछ है वो करना है, तो स्टिल वी हैव टाइम। बट द ऊपर वाला क्लॉज, प्रैक्टिस यूनिट व्हिच प्रपोजेस टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट, तो ये इसमें मेरे को लगता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें काफी एक्सीडेंट होंगे। तो जब जो बैंक ब्रांच ऑडिट करते हैं, जनरली जो बैंक ब्रांच ऑडिट करते हैं, तो उसमें वो कंटिन्यूइंग ऑडिटर वाला ईमेल आता है 25 27 मार्च को, एंड देन अपने को एक एक्सेप्टेंस देना होता है कि हाँ यस, तो अब उस मेल के साथ आएगा प्लीज अटैच योर और वो उसमें जिसके पास नहीं होगा तो मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि काफी रोलिंग होएगा। हाँ, एंड इसमें एक पकड़ वाली चीज ये है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये ऐसा था तो व्हाई नॉट 28 फरवरी, व्हाई 1 जनवरी 26, व्हाई इट वाज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 26, व्हाई नॉट 28 फरवरी। बैंक ऑडिट मेरे को अप्रैल में साइन करना है, तो व्हाई 1 जनवरी। तो उसका बहुत सिंपल है कि जो भी एमईएफ का फॉर्म भरते हैं, तो एमईएफ का जो डेटा पकड़ा जाता है वो एज ऑन 1 जनवरी पकड़ा जाता है। तो अब की बार एमईएफ में ऑटोमेटिक आएगा कि योर फॉर्म इज अंडर पीआर, तो उसके बाद भी अपन पीआर रिव्यू करवाएंगे, बट उसके बाद तो थोड़ा फॉलो अप्स एंड इंस्टीट्यूट अपना जो भी एमईएफ है उसमें ईमेल करो, सर्टिफिकेट भेजो कि माय फॉर्म इज पीआर रिव्यू, तो थोड़ी एम्बिग्यूटी रहेगी। पर 1 जनवरी जो डेट डाली है उसका पर्पस ये है कि एमईएफ में ऑटोमेटिक आए। एक अच्छी बात ये है कि अगर एक्सटेंशन आया तो सीधा 1 साल का ही रहेगा, तो वो एक अच्छी बात है। एंड थोड़ा सा मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक्सटेंशन आना चाहिए। रीजन ये है कि वहाँ पीआर रिव्यू बोर्ड में 15 or there is a limited team of only 15 chartered accountants who are checking, who are verifying the peer review reports what the reviewer is sending there, and अभी last 20-25 days से hold on चालू हो गया, बहुत delays चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने फॉर्म 1 भेजा तो मुझे 48 आवर्स में 3 रिव्यूअर के नाम आने चाहिए, अभी 8 दिन बाद आ रहे हैं। फिर समझो मैंने रिव्यूअर सिलेक्ट कर लिया, तो रिव्यूअर सिलेक्ट करने के बाद विदिन 48 आवर्स रिव्यूअर को मेल चले जाना चाहिए कांग्रेचुलेशन, वो अभी 10 दिन बाद आ रहे हैं। तो लग तो रहा है बट स्टिल कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से ये सेशन रखा गया है और इसी की वजह से अपन सब आज यहाँ पे जमा हो। हमारा फॉर्म में 6 पार्टनर्स हैं और हम लोग बैंक ऑडिट करते हैं, पब्लिक बैंक के ऑडिट कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर जो कि अभी ये क्लोज से इंक्लूड किया गया है कि जब तक हम लोग का पीयर रिव्यू नहीं होता तब आप कोई ये नहीं कर सकते हैं। So whether we will be able to, our firm will be able to do the bank continue with the bank audits. आपको तो पहले एप्लीकेबल हो गया 5 और मोर पार्टनर्स। वो तो है।
आप करें पॉलिटिव हाँ, तो आप तो कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट। नहीं कर अभी जब तक पीयर रिव्यू नहीं होता है। भाई बहुत पार्टनर्स ना बहुत पीछे चले गए, भाई के बाद 4 आ गया, 3 आ गया भाई। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में 1 जुलाई से 2 पार्टनर्स आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर से अपन सब वन अमंगस्ट यू अपन सब छोटी है छोटी कर लिया वो ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, तो ठीक है, नहीं है ठीक है, मैं बताऊंगा वो जो आपने ठीक है बोला ना, उसमें बहुत मेमोज आ चुके हैं, तो वो ठीक है नहीं है वो मैं बताऊंगा, मेरे आगे मैं थोड़ा एक्सेल दूंगा तो आगे सब एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। पीयर रिव्यू होने वाला है। अगर वो जब तक नहीं होता now coming to the point, criteria of peer review, ये बहुत अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है। मैंडेटरी फेज वाइज वी हैव डिस्कस्ड, बैंक ऑडिट, लिस्टेड कंपनी, 5 पार्टनर 4 पार्टनर, वो सब मैंडेटरी में आता है। वॉलंटरी तो मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं वॉलंटरी भी अप्लाई कर सकता हूँ इंस्टीट्यूट को, अपने अल्मा माटर को कि आई वांट टू डू द पीयर रिव्यू ऑफ माय फर्म। स्पेशल केस तो भगवान करे किसी का भी ना आए, जो इंस्टीट्यूट कंपल्सरी बोले कि भाई इस फॉर्म को पीआर रिव्यू करवाना मैंडेटरी है, तो भगवान करे वो तो अपने में से किसी का ना आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यू यूनिट, तो किसी ने फॉर्म खोली है, यंग बच्चे जो सीए प्रैक्टिस में आ रहे हैं, यंग प्रैक्टिशनर्स, तो दे शुड नॉट बी लेट डाउन कि मेरे फॉर्म को 3 साल नहीं हुए हैं तो मेरा पीआर रिव्यू नहीं हो सकता, तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, मैं बीएफ नहीं फाइल कर पाऊंगा। तो न्यू यूनिट कैन आल्सो अप्लाई। न्यू यूनिट की मैं आगे डेफिनेशन बताता हूँ आपको, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बट व्हाट आई मीन टू से इन शॉर्ट कि अगर नया नया फॉर्म खोला है तो भी अपन पीआर रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी डिस्कस कर लिया, वॉलंटरी डिस्कस कर लिया, स्पेशल केस डिस्कस कर लिया। न्यू यूनिट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर कमिंग फॉर प्रैक्टिस। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज लेस देन 12 months। मैंने फॉर्म खोली है, 1 साल भी नहीं हुआ है, जनरली पीआर रिव्यू 3 साल के लिए होता है। न्यू यूनिट में मैंने नई फॉर्म खोली है, 1 साल भी नहीं हुआ है, स्टिल आई कैन अप्लाई फॉर पीआर रिव्यू। प्रैक्टिस इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 months, 1 साल से ज्यादा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नॉट रेंडरिंग एनी एश्योरेंस सर्विस, मैंने कोई एश्योरेंस सर्विस दी नहीं है, स्टिल आई कैन अप्लाई फॉर पीआर रिव्यू। तो ये लाइन से एक और चीज क्या समझ में आ रही है कि एश्योरेंस सर्विस, तो एश्योरेंस सर्विस के डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पीआर रिव्यू के। भाई एश्योरेंस सर्विस नहीं है तो भी पीआर रिव्यू कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास वर्किंग पेपर नहीं है या ये नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीएनपी इंपॉर्टेंट है, प्लान्स एंड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। तो इनके न्यू यूनिट में क्या देखा जाएगा, रिव्यूअर आएगा, वो क्या देखेगा, प्लान्स एंड पॉलिसीज देखेगा। चलती है बट वर्किंग पेपर्स अलग होते हैं, अपना जो नॉर्मल टेंडेंसी है वो वर्किंग पेपर्स की। 1 साल से ऊपर न्यू फर्म को हो गया एंड एश्योरेंस सर्विस टू दिया है, वो भी कर सकते हैं। 3 साल से कम है। वॉलंटरी वॉलंटरी है, मेरे ख्याल से वॉलंटरी लेना इजी है, जल्दी मिल जाता है। नहीं जल्दी सब जल्दी मिलता है, आपको पूरा टाइमलाइन बताऊंगा। बड़ी से बड़ी फॉर्म होने दो, अपना अल्मा मैटर कोई ये डिफरेंशिएट नहीं करता है, सबका इतना मस्त टाइम फ्रेम बनाया है कि उस टाइम फ्रेम में काम होएगा ही होएगा और पीआर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट 2019-20 before 2019 I was a partner, I was in a partnership firm. 1st April 2019 I started my own brand Ankush Gupta and Associates। मैंने जो मेरा फर्स्ट पीआर रिव्यू करवाया था वो 1 साल बाद करा दिया था। इमीडिएटली 1st April 2020 को मैंने इंस्टीट्यूट को ईमेल कर दिया था कि आई वांट टू डू माय पीआर। मैं एश्योरेंस सर्विसेज करता था, प्रैक्टिस करता था, तो कर सकते हैं, 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं, 3 साल में भी कर सकते हैं। Now general is peer review means 3 preceding financial years। तो अगर अपन आज की डेट में पीआर रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो 22-23, 23-24, 24-25 these 3 years will be under review and 1 year वाला भी कर सकता है, 2 years वाला भी कर सकता है, कोई बात है।
peer review process requires 3 stages. प्लान करना पड़ेगा, प्लान करने के बाद आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा एंड रिपोर्टिंग। प्लानिंग मैं सब पूरा समझाऊंगा आपको डिटेल में। मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता देता हूँ जो मैंने स्लाइड बनाई है कि उसमें टाइम फ्रेम की जो बात कर रही थी वो भी बता देता हूँ। थोड़ा पहले पास्ट बताता हूँ और फिर अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो बताता हूँ। पहले पहले क्या होता था, जैसे 1920 में जब मैंने मेरी फॉर्म का पीआर रिव्यू करवाया तो मैंने 1 अप्रैल 2020 को इंस्टीट्यूट को एक आराम से ईमेल कर दिया, my firm name is Ankush Gupta and Associate, my FRI number is so and so, please initiate my PR review process। 2 दिन में मुझे 3 रिव्यूअर के नाम आ गए। नेक्स्ट डे मैंने एक रिव्यूअर सिलेक्ट करके इंस्टीट्यूट को मेल कर दिया, इंस्टीट्यूट ने रिव्यूअर को कांग्रेचुलेशन भेज दिया। उसके बाद हमारी गाड़ी रुक गई क्योंकि मेरे को रिव्यूअर को फॉर्म 1 भेजना। अपन लोग अभी हम पहले मई में दूसरा ऑडिट कर लेते हैं तो वो एक लंबा चलता था। वो सब कट शॉर्ट करने के लिए अब इंस्टीट्यूट ने जो बोर्ड ने जो रूल बनाया है वो ये है कि पहले आपको फॉर्म 1 भरना, पूरा फॉर्म 1 भरना है। वो भर के आपको इंस्टीट्यूट को ईमेल करना है और बड़ी से भी रहेंगे माय फॉर्म नेम सो एंड सो एफआईएन नंबर सो एंड सो, प्लीज इनिशिएट माय पीआर रिव्यू प्रोसेस। तो वो जो मेरा प्रोसेस जो 2020 में चालू हुआ और फिर मेरा फॉर्म 1 देने में जो 20 डेज या 1 महीने का गैप दिया वो पूरा गैप खत्म हो गया है। उसके बाद अपन इंस्टीट्यूट को फॉर्म 1 ईमेल करेंगे, ड्यूली फिल्ड साइन ईमेल करेंगे। मैं बताऊंगा फॉर्म 1 में क्या है तो बताऊंगा, वो भेजेंगे अपन। उसके 24 आवर्स 48 आवर्स में इंस्टीट्यूट आपको 3 रिव्यूअर के नाम भेजेगी। यू आर फ्री टू टॉक टू दोस 3 रिव्यूअर्स। आप अपना कंफर्ट देख लीजिए, आपको किसमें कंफर्ट है, क्या है, एंड एक रिव्यूअर का नाम आप सिलेक्ट कर लीजिए। कभी खुदा ना खास्ता तीनों रिव्यूअर ने नाम बोल दिया, एक ने बोल दिया मैं बिजी हूँ, एक ने बोल दिया मुझे नहीं आना है, कुछ भी है, और तीसरा आपको पसंद नहीं आया तो आप इंस्टीट्यूट को ईमेल कर दीजिए कि प्लीज सेंड मी अ फ्रेश लिस्ट ऑफ रिव्यूअर। इंस्टीट्यूट फिर से फ्रेश लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट भेजती है, रिव्यूअर्स भेजती है और उसमें से सिलेक्ट कर लेना, कोई रिजेक्ट नहीं करना उसमें से। तो वो करके आपने रिव्यूअर सिलेक्ट कर लिया, रिव्यूअर सिलेक्ट करके आपने इंस्टीट्यूट को ईमेल कर दिया कि आई हैव सिलेक्टेड सो एंड सो रिव्यूअर। इंस्टीट्यूट विद इन 48 आवर्स उस रिव्यूअर जो आपने सिलेक्ट किया है उसको ईमेल करेगी, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पीआर रिव्यू ऑफ अंकुश गुप्ता एंड एसोसिएट्स। तब वो जो रिव्यूअर जिसको सिलेक्ट किया है उसको फॉर्म 2 भेजना है, फॉर्म 2 इंस्टीट्यूट को और आपको। अब आप जो है वो है पीयू, प्रैक्टिस यूनिट, विल यूज द टर्म पीयू। तो इंस्टीट्यूट बोर्ड को भी ईमेल करना है प्लस पीयू को भी ईमेल करना है, प्रैक्टिस यूनिट को भी ईमेल करना है। व्हाट इज फॉर्म 2? फॉर्म 2 इज एक्सेप्टेंस फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका अपन सबसे ज्यादा डरते हैं ना कि कोई दूसरा सीए आएगा, वो मेरा सब डॉक्यूमेंट देखेगा, मेरे क्लाइंट्स देखेगा, बाहर जाएगा, उनको अप्रोच करेगा, किसको बता देगा। तो उसके लिए फॉर्म 2 बनाए हैं। तो फॉर्म 2 उसको मेल करना है। फॉर्म 2 जैसे किसने मेल किया, आपको मेल आया तो वो फॉर्म 1 जो आपने इंस्टीट्यूट को ईमेल किया वो आपको रिव्यूअर को मेल करना है। रिव्यूअर फॉर्म 1 स्टडी करेगा, वो फॉर्म 1 स्टडी करके फॉर्म 1 में आपको लिस्ट ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज लास्ट 3 इयर्स वो देनी है। तो अकॉर्डिंगली रिव्यूअर जो है उसमें से सैंपल्स सिलेक्ट करेगा जो आपको चेक जो आपके ऑफिस में आके वो चेक करेगा। सैंपल वो अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ कर सकता, उसका फिक्स क्राइटेरिया है डिफाइंड बाय बोर्ड। एक सैंपल लेगा हाईएस्ट टर्नओवर का, एक सैंपल लेगा जिसमें ऑल द पार्टनर्स डिफरेंट पार्टनर्स हैव साइंड एंड ऑल द अदर वैराइटीज, टैक्स ऑडिट, स्टैट ऑडिट, कंपनी। तो बेसिकली डिफाइंड फॉर्मेट है, वही डिफाइंड फॉर्मेट में उसको सैंपल सिलेक्ट करने हैं। सैंपल सिलेक्ट करके वो आपको फॉर्म 5 भेजेगा। फॉर्म 5 भेजने के पहले वो आपसे बात भी करेगा कि मैं नेक्स्ट वीक आना चाहता हूँ या मैं इस डेट में आना चाहता हूँ। तो वो दोनों पार्टियों के पीयू एंड रिव्यूअर के कंफर्ट लेवल के हिसाब से मीटिंग होएगी एंड आपको और इंस्टीट्यूट को फॉर्म 5 ईमेल करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द एकदम पहले ये अपन बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपने पास, देखो पीआर रिव्यू करवाना है, मैं ऑडिट बहुत अच्छा करता हूँ, सब करता हूँ, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फिर सेकंड थॉट ये आता है, अभी भी बहुत लोगों को थॉट आया होगा कि एक बार डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं उसके बाद अपन पीआर रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। बट अगर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो
तो आप एंटायर यूनिट के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो। अब आपके पास फॉर्म 5 आ गया, आपके पास 7 डेज 10 डेज का टाइम आ गया बीच में, आपको मालूम है कि रिव्यूअर क्या आके कौन से क्लाइंट आके रिव्यू करने वाला है, तो आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वही फाइल रेडी करनी है, वो जो देखने वाले हैं, तो आपका स्कोप जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली रिव्यूअर आएगा आपके ऑफिस में, जो भी उसको वेरीफाई करना है वो वेरीफाई करेगा, एंड उसके बाद वो जाके उसके कुछ फिक्स फॉर्मेट्स हैं रिपोर्ट के, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 एनेक्सर 3, वो रिपोर्ट्स वो इंस्टीट्यूट को ईमेल करेगा। उसमें जब ईमेल करेगा तो उसमें एक और बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा फॉर्म है जो मेरा फेवरेट फॉर्म है, वो है फॉर्म 9, और साथ में फॉर्म 9 भी ईमेल करेगा। नाउ व्हाट इज फॉर्म 9? पहले क्या होता था, मैंने सर का पीआर रिव्यू कर दिया, मैंने रिपोर्ट ईमेल कर दी, अब मैं गया सर के पास फीस मांगने, तो सर का स्टैंडर्ड जवाब क्या जवाब, पहले सर्टिफिकेट तो आने दे, स्टैंडर्ड जवाब। एट द सेम टाइम समझो इंस्टीट्यूट से कोई क्वेरी आ गई सर के लिए कि अंकुश ने ये डिस्क्रिपेंसी नोट की है, प्लीज रिप्लाई, तो अगेन सर का स्टैंडर्ड रिप्लाई, द रिपोर्ट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड विद मी। तो फॉर्म 9 उस डिस्प्यूट को हटाने का सोल्यूशन है जो बोर्ड ने निकाला है। तो आपको रिव्यूअर को फीस पहले देती है बिफोर ईमेलिंग द रिपोर्ट, एंड फॉर्म 9 में वो रिव्यूअर लिखेगा आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो फीस, वाइट चेक नंबर या एनईएफटी या जो भी है, एंड साइन कर देगा। एट द सेम टाइम पीयू को भी साइन करना है कि आई हैव रिसीव्ड फॉर्म 2 एंड डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ये, तो वो जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए फॉर्म 9 बनाया गया है। एंड एक और फॉर्म है फॉर्म 5 फॉर्म 6 है, उसमें डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले। तो मेरे को आपने सिलेक्ट कर लिया, टाइम फ्रेम है कि 15 डेज में मुझे रिव्यू करना है एंड मुझे रिपोर्ट उसके बाद अदर 15 डेज में रिपोर्ट ईमेल करनी है। अब मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया, सब कर लिया, और मैं चला गया घूमने फिरने, अब तो ऑडिट आ गया ना, बाद में देख लेंगे आराम से। तो फिर को एक कंडोनेशन ऑफ डिले का फॉर्म बोर्ड में भेजना पड़ेगा, एंड अगेन दैट फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय बोथ। तो यू आल्सो एग्री कि हाँ कुछ ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है तो बाद में करेगा। तो उसमें डिले जो है, जो अपन डिले की बात कर रहे थे, लॉन्ग प्रोसेस की बात कर रहे थे, वो सब कॉम्प्रेस हो जाता है। तो ये अगर पूरा प्रोसेस चला 1-2 दिन 2-5 दिन ऊपर नीचे, still I'm pretty sure, pretty confident कि within 30 days the entire process gets over. It is not a within 30 days में 10 days तो मैं वो गिन रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट मिल गई है, इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट अपने पास रखी है वेरिफिकेशन के लिए, तो अल्टीमेटली आपका प्रोसेस तो 20 डेज 18 डेज 20 डेज में स्मूथली कंप्लीट होता है। तो वही मैंने यहाँ स्लाइड बनाई है, फॉर्म 1 3 रिव्यूअर्स में से एक सिलेक्ट करना है, PU selects and inform the name of the reviewer, the board seeks acceptance, a complete questionnaire, ये जो मैंने भी बताया वही सब है। स्टेज 2 आ गया, एग्जीक्यूशन begins, ये भी मैंने बता दिया आपको। फॉर्म 5 में अपनी डेट फिक्स हो गई है, कब अपने को मिलना है, क्या करना है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैं अगर आपके फॉर्म में आ रहा हूँ तो मैं क्या अप्रोच ले रहा हूँ, सब्सटेंटिव अप्रोच ले रहा हूँ, ये अप्रोच ले रहा हूँ, वो करते हैं, और मुझे कैसे रिपोर्टिंग करना है वो भी बता रहा हूँ। बोर्ड नीड सजेस्ट करता है, जिसका नहीं सजेस्ट किया वैसे कंसेंट लेके नहीं सजेस्ट करते हैं, नहीं ठीक है। अभी रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा मैं आपको, मैं सब प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको। तो रिपोर्टिंग में भी अगर अंकुश आया आपके ऑफिस में, पीयू के ऑफिस में एज अ रिव्यूअर, और अंकुश ने 3 पॉइंट निकाले कि आपका 2 क्लाइंट में MR नहीं है, एक क्लाइंट में आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे पहले आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजना है, एंड आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रिप्लाई भेजना है, और फिर मुझे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट along with your reply has to be emailed to the institute। तो मैं अगर रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिख रहा हूँ कि ये 2 क्लाइंट का MR नहीं था, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, अभी आके देख लिया, आ गया हो जाएगा ना, ठीक है, फाइल में नहीं था, ले लिया, उसको क्या हो गया, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो
मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्यों बता रहा हूँ कि अल्मा माटर अपने अगेंस्ट नहीं है, उसका फोकस मेजर जो है वो क्वालिटी पे है, एंड ये सीखने के लिए है कि चलो ये डिस्क्रिपेंसी है तो कोई नहीं, सुधार ले, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, तेरी तेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो मैंने इतने रिव्यूज किए हैं, मैंने कभी किसी की रिपोर्ट ये सब रीजंस की वजह से अटकते हुए नहीं देखी, कभी नहीं देखी। ये फॉर्म्स जो अपने डिस्कस किए, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 जो डिस्कस किए, फॉर्म 5, ये भी मेरे इंटरेस्ट का है ये, बिकॉज आई एम द रिव्यूअर, और आपके इंटरेस्ट का इसके लिए कि आपके पीयू के प्रॉफिट में डेंट होता है, बट ऑफ कोर्स अगेन द अल्मा माटर इज वेरी काइंड, तो फीस जो है बहुत रीजनेबल रखी है, बहुत नॉमिनल रखी है, एंड फीस का जो डायरेक्ट लिंक दिया है वो आपके टर्नओवर से दिए है, पीयू के टर्नओवर से दिए है, और टर्नओवर भी कौन सा लास्ट 3 ईयर का, टर्नओवर कौन सा ओनली फ्रॉम अश्योरेंस, ओनली फ्रॉम अश्योरेंस सर्विस, तो एकदम कंप्रेस हो जाता है। तो इफ एवरेज ऑफ 3 इयर्स इज लेस देन 10 lakhs तो 15 है, 10 to 50 lakhs 25,000, 50 lakhs to 1 crore 40,000, 1 crore to 3 crore 60,000, तो फीस बहुत उन्होंने ब्रांच का सेपरेट, ब्रांच का सेपरेट, आपको वो मैं फॉर्म 1 में बताऊंगा, ब्रांच का सेपरेट है, मैं आपको फॉर्म 1 आप देखेंगे ना, तो फॉर्म 1 में जो उन्होंने रिसीव लिखी है उसमें कॉलम वैसे ही दिए हैं, एचओ ब्रांच 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 ब्रांच, नहीं, but the validity of certificate in case of where the review is being done for 3 years, the validity is 3 years. और न्यू यूनिट में एक कैच खाली यही है कि सर्टिफिकेट 3 साल का नहीं मिलता है, 1 साल का मिलता है, एंड एकदम कोई बॉन्ड केस जैसा हो गया जिसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, तो इंस्टीट्यूट डजंट डिनाई द सर्टिफिकेट, बट वो 3 साल के बदले 2 इयर्स का या 18 months का देते हैं, प्लस एक और है, जैसे अभी मैंने एक रिव्यू किया, तो अगर अश्योरेंस सर्विसेज 10 से कम है, मैंने एक फॉर्म का किया जो 12 साल एग्जिस्टेंस में है, और उसने 3 साल में टोटली 8 ही अश्योरेंस सर्विस की है, मतलब लेस देन 10 की है, तो उसको भी सर्टिफिकेट 18 months का मिला, 3 years का सर्टिफिकेट नहीं, जबकि रिपोर्ट वाज एंटायरली क्लीन। तो ये थोड़े से उन्होंने मतलब मिनिमम सैंपल शुड बी ऑफ 10 or more इन शॉर्ट। सॉरी, maximum threshold. You said it is proportionate to turnover. Okay, now what is the maximum threshold? If 1, 2, 3 and above, 3 and above, I think 90,000 है, maximum 90,000. प्लस अभी थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है, तो अगर लिस्टेड कंपनी करते हैं, अगर आपने पीयू जो है वो लिस्टेड कंपनी करता है तो 5,000 एक्स्ट्रा है, 10,000 एक्स्ट्रा है। And this is per firm or branch wise also is to be considered. नहीं, ब्रांच अगर कंसोलिडेटेड में यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैं आपका मुंबई में है और हैदराबाद में ब्रांच है, और मैं यहीं बैठ के अगर कर रहा हूँ, मेरे को आप हैदराबाद के डॉक्यूमेंट्स यहीं ला के दिखा रहे हो तो कोई सेपरेट नहीं है, अगर मेरे को आप हैदराबाद भेज रहे हो तो अदर देन ट्रैवलिंग 5,000 एक्स्ट्रा पर खर्च। Thank you. बट ये आई थिंक जस्टिफाइड ये रहेगा, मैं आपको आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरी कि व्हाई हेड ऑफिस एंड ब्रांच सेपरेट, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि ब्रांच में अपन अश्योरेंस सर्विस कर रहे हैं तो मेरे को ब्रांच का पीआर करना ही नहीं, जो टॉप 5 है टॉप 4 है उनके 50 ब्रांच है, तो उन्होंने ओवरऑल पूरा एक का पीआर रिव्यू नहीं किया है, या उन्होंने सब ब्रांच का पीआर रिव्यू नहीं किया है, उनकी बेंगलोर की ब्रांच है वो खाली कंसल्टेंसी के लिए, तो उसमें पीआर रिव्यू करने की जरूरत नहीं, इसलिए आई थिंक इंस्टीट्यूट में जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाई नॉट वन एंड व्हाई सेपरेट। मेरा क्वेश्चन है कि कितने मेंबर पीयर रिव्यू में एम्पानलमेंट है, मींस कितने सीएस, और सेकंडली डू यू नॉट थिंक दैट दिस इज द फीस इज वेरी
minimum. Most of these people are not coming forward to be a impediment in the peer review. Right. And thirdly is when we are, see, when you charge more, so I will collect through my client course. हमको मेरे को peer review का close 50 ना रहे तो मैं client को बोलूँगा मैं तो 25,000 ज़्यादा देखूँ. After our community will get benefit. Charges, one over charges, जो insurance किया है. If I am 35 years of practice, I want to be a panel in the peer review. I won't be because what is the use 10,000, 15,000, 20,000? I think that they have to increase the fees and It's a difference of opinion, I think. I am happy, मतलब honestly अगर आप मेरा opinion नहीं है तो I am happy fees कम है तो अपने भाई बंधु तो है इनसे क्या कमी है ऐसा तो and Lora ji please अरे please we recognize the presence of Bhishma Pitama and Lora ji please. Just for understanding, the peer review, if there is deficiencies, still peer review certificate we should subject to period by, is it that I understand it? नहीं deficiency मतलब बहुत major कोई deficiencies है otherwise institute मैं बोला ना our alma mater is very kind. Deficiency means मैंने एक case किया था जिसमें 9 पेज की deficiency and ये PU ने मुझे बोल दिया था बोले अंकुश भाई छोड़ो अपन देख रिव्यूअर को ना बोल देते हैं अपन अपना ये वापस ले लेते हैं कि आपको मैं आई वाज कॉन्फिडेंट मैं रिप्लाई करता हूं तो मतलब रिप्लाई करना मैं रिप्लाई करता हूं 9 पेज की क्वालिफिकेशंस थी मैंने 9 पेज का रिप्लाई बनाया तो उसको 2 साल का पीएचडी सर्टिफिकेट दिया तो they are very kind they understand see they are very kind they understand they are जो फीस की बात है या जो आपकी बात है जो they are not harsh they know it is a professional community. I will tell you when they are harsh, in what circumstances, on what conditions they are harsh, I will tell you. And there I think they should be harsh. Because they are absolutely our mistake. That's like getting it exam. You prove next time, that's all. And मैडम का क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है एक पहले तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था तो मैं फर्स्ट टाइम क्लियर रिव्यूअर बना था आई थिंक 2012-13 में तो जेबी नगर ने पीआर रिव्यू बोर्ड का पीआर रिव्यू का फुल डे का सेशन लगाया 6 आवर्स का तो पहले वो था कि बस एक सेशन अटेंड कर लो अपना अटेंडेंस मार दो एंड यू आर अ रिव्यूअर अभी कोविड में उन्होंने चेंज कर दिया अभी मैंडेटरी एक सेशन अटेंड करना है एंड उसके बाद एग्जाम देना है एंड एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम है एवरी फ्राइडे होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है थैंकफुली अपन पास हो जाते हैं और 50% ही लाने हैं और क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव है वो 4 आंसर आते हैं तो वो व्हाट इज टेल मी करके तो हो जाता है रिव्यू होने के लिए उसकी फॉर्म रिव्यू होना जरूरी ना मैं अगर आपका रिव्यू करने आ रहा हूँ तो मैं इंक्लूसिव कैपेसिटी में आ रहा हूँ मेरा बिल भी इंक्लूसिव कैपेसिटी में रहेगा फॉर्म की कैपेसिटी में नहीं रहेगा तो फीस के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया बट मेजर जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस नहीं हुआ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जब फॉर्म 1 भरेंगे तो फॉर्म 1 भरेंगे तब आपको फीस की डिटेल डालनी है एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे पास आते हैं पीआर रिव्यू करवाने वो लोग फीस का बाइफिकेशन करने में 5 दिन 6 दिन निकालते तो इसमें मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ सपोज योर रिसिप्ट इज टोटल रिसिप्ट इज 98 तो जितना भी डालो वो 50 के ऊपर ही रहने वाला है तो 98 पूरा दिखा आपको डेट पॉकेट से उतना ही लगने वाला है हाँ स्लैब तो उस तरह से स्मार्टली देखो फॉर्म 1 भरने जाओगे ना 15-20 दिन फॉर्म 1 भरने में लग जाएंगे उसमें 5 दिन ये लेंगे तो अपन अपने ब्लड में वी आर ऑडिटर्स अपन फिर एक चीज को स्क्रूटनाइज करते हैं अरे ये इसको जाएगी पर वो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका स्लैब फीस इज ओनली एंड ओनली फॉर रिव्यूअर्स फीस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना कि मैं 5 करोड़ की फीस दिखा रहा हूँ और 25 क्लाइंट दिखा रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन करेगी और इतनी फीस और 25 क्लाइंट इंस्टीट्यूट देखती भी नहीं है इतनी फीस है वो रिव्यूअर को देना है उसकी फीस कितनी तो कोई फीस से कोई ये डिसाइड नहीं करेगा कि बड़ी फॉर्म है छोटी फॉर्म है
जो जनरल अपने दिमाग में आता है कि अब मैं इतनी रिसिप्ट दिखाऊंगा तो बोलेंगे मेरी फॉर्म बड़ी है तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पे सबको एक लेवल पे ही रखा है। तो फॉर्म 1 जो है स्मार्टली भरना, उसमें फीस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, उस कोई आना जाना नहीं है। जो जितना अगर 10 से 50 के बैंक में आ रहे हो, कितना भी काटन काटी कर लो तो जाने दो उतना ही। फॉर्म 1 को आगे बढ़ाओ। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस, द फीस का अपनी बात करते हैं। एंड लास्ट AQMM है। AQMM इज ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। AQMM में जरा भी कवर नहीं करूंगा बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ सेपरेट टॉपिक। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि इंस्टीट्यूट आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी चीज में कर रही है तो वो AQMM में कर रही है। इंस्टीट्यूट को PRU में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट AQMM में है। AQMM 600 मार्क्स का है। सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, आपको अपना स्कोरिंग देना है, स्कोरिंग के हिसाब से आपको लेवल मिलेगा। एंड इंस्टीट्यूट का ये प्लान है, PNP प्लान्स एंड पॉलिसीज है कि अल्टीमेटली ओवर द इयर्स आपकी फॉर्म, मेरी फॉर्म, अपन सबकी फॉर्म का AQMM लेवल विल बी पब्लिश्ड इन ICAI वेबसाइट। तो कल टाटा बिरला अंबानी किसी को अपना ऑडिटर चेंज करना है तो वो वेबसाइट में जाके क्वालिटी लेवल मालूम पड़ेगा, उस क्वालिटी लेवल के हिसाब से वो CA को पिक कर सके। तो सबसे ज्यादा मेहनत जो चल रही है वो AQMM में चल रही है। AQMM आज की तारीख में मैंडेटरी है ओनली एंड ओनली फॉर फर्म्स हु आर डूइंग ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। बाकी को करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो आप अगर फर्स्ट साइकिल है, आप में से किसी की फर्स्ट साइकिल है और लिस्टेड कंपनी नहीं करते हो तो एक बार AQMM छोड़ो और आगे बढ़ो। बिकॉज AQMM में बहुत चेंज आने वाले हैं। अभी भी वर्जन 2 आ गया है, AQMM में V2 आ गया है, वर्जन 2 आ गया है। तो AQMM में आगे बहुत चेंज आने वाला है। फीस की बात हुई थी, तो अगर मैं रिव्यूअर हूँ, मैं PU के पास आ रहा हूँ और अगर उसको AQMM एप्लीकेबल है तो मुझे 5000 वाले एक्स्ट्रा मिलेंगे। AQMM में सेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि AQMM ये है हाँ तो क्या AQMM अपनी आंखें खोल देगा। Then again, form 1 application questionnaire is divided in 3 parts, part A, part B, part C. Part A आप ही भर सकते हो, जनरल प्रोफाइल है, नाम, पता, एड्रेस, कितने पार्टनर हैं, कब बने, बेसिक डिटेल, टर्नओवर डिटेल, हु इज द इंचार्ज पार्टनर, बेसिक डिटेल्स है। जो अपन इंपॉर्टेंटली जो मैं पूरा कवर करूंगा वो करूंगा पार्ट बी, SQC क्वालिटी कंट्रोल, जो हार्ट ऑफ द फॉर्म 1 वो अपन डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट सी इज AQMM जिसको अपन टच भी नहीं करेंगे। तो SQC क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल, SQC इज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो पूरा जो फॉर्म 1 है जो आप अपने फर्म के बारे में लिख रहे हैं वो क्वालिटी के बारे में लिख रहे हैं। तो रिव्यूअर, बोर्ड, PU, everyone is interested only in quality. So this quality is divided in 6 parts: leadership, ethical, client acceptance and continuance। मतलब ये सब की क्वालिटी, ये सब आपको वहां पे क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको प्रूव करना है। मैं करता हूँ तो दिमाग में करता हूँ या हमारे फॉर्म में होता है वो नहीं, ये सब चीज के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। PRU कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो HR में अपन ये नहीं बोल सकते कि मेरी छोटी फर्म है, मेरे पास कोई इम्प्लॉय है ही नहीं, इम्प्लॉय मिलता ही किधर है? इम्प्लॉय है कि नहीं है? आपने इम्प्लॉय 0 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म है आपकी ना, आपकी HR की पॉलिसी होनी चाहिए। कल इम्प्लॉय आएंगे तो बस एंगेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो ये थोड़ा सा 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा, यही मेन हार्ट है फॉर्म 1 का जो अपने को वी ऑल हैव टू फिल बिफोर स्टार्टिंग द PRU। एंड यही 6 बताएंगे आपको कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं PRU के लिए। तो ऑल दिस 6 कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर। तो ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने इनमें से 4 के डॉक्यूमेंट दिखा दिए ना तो आपका रिव्यू कंप्लीट। कोई वो किसी को देखो, एक प्रैक्टिकल चीज समझो, ऑफ रिकॉर्ड एक प्रैक्टिकल चीज समझो कि मैं एज अ रिव्यूअर आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, आपने दिया है XYZ बैंक का ब्रांच ऑडिट किया है, आपने मेरे सामने 4 बॉक्स फाइल कर दी,
मुझे क्या समझ में आया? क्या देखो आपके वर्किंग रेफरेंस में क्या देखूंगा? अभी गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए है कि हाँ आपने ये लिया ऐसा लिया, बट इम्पोर्टेंट जो है वो तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटीज विद इन अ फर्म। तो फर्स्ट है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। रिव्यूअर आपके ऑफिस में आएगा, जैसे ही बैठेगा तो फर्स्ट थिंग वो मांगेगा वो है क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल लीडरशिप। फॉर्म 1 में पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन ही ये डज द फॉर्म हैज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल। तो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर पीएलए। अब जब आप फॉर्म 1 भर रहे हो तो फॉर्म 1 में पर्टिकुलर्स में क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। आंसर के ऊपर दिया हुआ है टॉप में yes/no/na। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने को yes no na में आंसर देना है। नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्यों लिखा है, गॉड नोस, बट आपने को डिटेल्ड आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन का आपने को डिटेल्ड आंसर देना है। तो आपकी फॉर्म में एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो एक रिस्पॉन्सिबल, आपको एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अगर प्रोप्राइटर है तो फिर तो स्टैंडर्ड जवाब है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बीइंग अ प्रोप्राइटरी फॉर्म, प्रोप्राइटर itself is responsible, but you have to write this sentence. You cannot write yes, you cannot write no. तो yes no na को कम यूज करना और सेंटेंस को ज्यादा यूज करना। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो आपके फॉर्म में एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग द पॉलिसीज। Template for this manual is available in the website. वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल है। 3 बुक्स हैं, तीनों बुक अवेलेबल है, प्लस ऑल द फॉर्म्स आर अवेलेबल। फॉर्म्स पीडीएफ वर्जन में भी है, वर्ड वर्जन में भी है, इजी टू डाउनलोड, सब कुछ है, पूरा प्रोसेस है, एवरीथिंग इज देयर। whether is there quality control system and the method of verification। तो आपको ये प्रूफ करना है कि मेरे ऑफिस में क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है और वो काम कर रहा है। तो कैसे प्रूफ करोगे आप? क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल दिखा दीजिए, देखो मैंने ये मैनुअल बनाया है, ये मैनुअल में मेरा पॉलिसीज हैं, क्वालिटी पॉलिसीज हैं जो मैं मेरी फॉर्म इंप्लीमेंट कर दी है। एंड एक क्वेश्चन है कि इज इट अपडेटेड रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेशन। तो वहां अपन आराम से फॉर्म भरने के टाइम में लिख देते हैं एनुअली। तो मेरे ऐसा स्मार्ट रिव्यूअर आएगा तो बोलेगा पहले वाला भी दिखा, अभी वाला भी दिखा। तो आप समझे? अच्छा आपकी peer review हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल तो वो होना चाहिए। उसमें फॉर्म में फ्रीक्वेंसी भी लिखी है। फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन है whether the firm has a quality control manual। तो yes, the firm has a quality control manual। Who is the partner responsible? So and so senior partner so and so is responsible for the implementation in it। Third question है whether the same is documented। तो उसके नो एने नहीं, yes it is documented, पॉलिसी है तो documented, सॉफ्ट कॉपी भी है तो स्टिल इट इज डॉक्यूमेंटेड। एंड ये सब पॉलिसीज है, ये आपके फर्म की पीएनपी है, प्लान्स एंड पॉलिसी है। इट हैज टू बी ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प। ये रिव्यूअर के आने के बाद में स्टैम्प मारना भूल गया था या साइन देना, सी आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? एंड रिव्यूअर सबसे पहली चीज बिलीव नहीं, वो आपके ऑफिस में एंटर करेगा, फर्स्ट चीज आपसे मांगेगा क्वालिटी कंट्रोल। Yes. I want to get my form peer review, or as of now I don't have any quality control manual, but मैं form 1 के लिए तैयार करती quality control manual और मैं लिख देती हूँ। तो उसमें आप क्या suggest करेंगे कि मैं लिखूंगी yes I have a quality control manual, and जो अभी आगे मेरा ये है प्लान है कि मैं 6 month या एनुअली उसको आगे का प्लान नहीं लिखना है आपको, फिर लास्ट 3 इयर्स का अपना रिव्यू चल रहा है तो अपडेशन में लिखो इट इज रिव्यूड एवरी ईयर बट अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कोई नया चेंज आएगा तो हमने अमेंड किया, कोई नया चेंज ही नहीं है, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अमेंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वी आर यू नो रिपीटिंग द फॉर्म 1 हैज टू बी आंसर्ड
डॉक्यूमेंट तो वर्किंग पेपर से आएंगे ना, वर्किंग पेपर से दे दूंगा ना, लेकिन आप मुझे पीएनपी में इतना उलझा देंगे कि मैं वहां तक पहुंचूंगा ही। पीएनपी प्लान्स एंड पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ रिव्यूअर आई नो कि वर्किंग पेपर से मुझे कुछ समझ में आने वाला है। मुझे जो समझ में आने वाला है वो, या किसी को समझ में आने वाला है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज में समझ में आता है। वेदर responsible person has got sufficient appropriate experience, ability and authority। तो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल जो अपने फर्म का सीनियर मोस्ट पार्टनर है उसका नाम डाल देते हैं, तो उसमें अथॉरिटी भी है। और प्रोप्राइटर की केस में तो प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज रिस्पांसिबल, बट तो फॉर्म 1 नीड्स टू बी फिल्ड यू नो स्मार्टली। ऑथराइज्ड पर्सनल अटेंड सफिशिएंट ट्रेनिंग, टीपीआर कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म 1 भरना नहीं था, पीआर रिव्यू के लिए अप्लाई करना था। जेपी नगर आना जरूरी है, जेपी नगर में आना जेपी नगर में because 2-3 जगह पे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द यू नो ट्रेनिंग एंड सीपीआरस, तो वो आप करना ही करना। Then ethical, अभी now we all are being ethical practice, there is no doubt about it, there is no question about it, but then you have to prove that you are ethical, you have to prove, and how you will prove? नहीं वर्किंग पेपर्स काम नहीं करेंगे बाय पीएम। मेरी प्लान्स एंड पॉलिसीज है, मेरी प्लान्स एंड पॉलिसीज में लिखा जाएगा कि मैं गिफ्ट क्लाइंट से कोई गिफ्ट नहीं लेता हूँ, या मैं मेरे आर्टिकल्स के चाचा मामा रिलेटिव उनका ऑडिट नहीं करता हूँ, या मैं मेरा इसका ऑडिट नहीं करता हूँ। कोई एथिकली मैं एक ऑडिट कर रहा हूँ तो करेक्ट है, लेकिन कल वो ऑडिट करते करते वो किसी का कारण मेरा रिलेटिव बन गया तो मेरे पास थ्रेट आ गया, तो उस थ्रेट को मैं कैसे कवर करूंगा, कैसे डिस्क्लोज करूंगा, तो ये आपको पॉलिसीज बनानी है। एंड इसके लिए भी आपको एक पार्टनर को इंचार्ज बनाना है जो आपका एथिकल पॉलिसीज बनाता है और चेक करता है। एंड एथिकल के साथ एथिकल एंड इंडिपेंडेंस गो हैंड टू हैंड। तो इंडिपेंडेंस पॉलिसी होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंस पॉलिसी नॉट ओनली ऑफ एम्प्लॉइज, not only of staff, not only of articles, but of proprietor and partners also। तो ये मत सोचना कि मैं पार्टनर हूं तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूं लेकिन मैं बाकी सबकी इंडिपेंडेंस पॉलिसी ले लेता हूं। तो अपनी भी इंडिपेंडेंस पॉलिसी होनी चाहिए which has to be signed, which has to be stamped and signed and kept in the file। स्टाफ के लिए आप अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे ही 3 लाइन का कुछ इंडिपेंडेंस का लिख लीजिए कि भाई तेरा कोई रिलेटिव या किसी का ऑडिट अगर तू लेके आएगा तो इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म, इट इज नॉट माय ड्यूटी, और उस पर साइन लीजिए, तो वो स्टाफ का इंडिपेंडेंस पॉलिसी हुआ अंदर से, और उसको फाइल में रखिए, डॉक्यूमेंट करिए। तो दिस डॉक्यूमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल, एथिकल, इंडिपेंडेंस पॉलिसी। तो communicate its independence requirement to its personnel। So communicate, you are independent, I know you are independent, but then you have to communicate it to me। So how you will communicate it to me? By showing the policy, see that there are मेरा sign करके मेरे file में every year top। Evaluate the circumstances and relationship that creates threat to independence। जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको मैंने कि मैं एक ऑडिट कर रहा हूँ और कल वो कोई मेरे चाचा की बेटी का या किसी का शादी हो गई वहां पर और मेरा रिलेशन में आ गया अंडर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो मैं उसका थ्रेट कैसे, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, बट देयर मे बी वेरियस एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट, बट वो सब पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट, तो थ्रेट होना चाहिए प्लस मैं उसको एलिमिनेट कैसे करूंगा, मेरी फर्म, मैं मतलब मेरी फर्म, तो वो आपकी पॉलिसी है, आपके फर्म की पॉलिसी है। For all this independence matter, the SQC has put a lot of responsibilities on the shoulder of engagement partner। तो जो engagement partner है, मतलब जो वो ऑडिट कर रहा है, उसको ये सब चीजें देखनी है, इंडिपेंडेंस की, थ्रेट की एंड ऑडिट करना। तो ये एक्सेप्टेबल लेवल कैसे डिफाइन कैसे होगा? It depends on circumstances to circumstances। आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके ऐसा कोई मीटर नहीं है, ऐसा कोई डिफाइंड पॉलिसी नहीं है ना। मेरा रिस्क टेकिंग एक्सेप्टेबल कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है, सबके।
firm should obtain annual return confirmation. तो स्टाफ से फॉर्म 1 एक्सपेक्ट करता है एनुअल, आपका रिव्यू होएगा 3 साल का, मैं बोलता हूँ 3 साल में एक बार तो आपको फाइल में साइन करते हैं, रिव्यू उससे भी खुश हो जाएगा, नॉट नेसेसरी कि एनुअल, बट अपने फाइल में आई, तो ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं अपने को। क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फॉर्म हैज टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड relating to independence and also design policies to make sure that it won't get noticed, notified by breach. So are you getting it? ये पॉलिसी बनानी है, इंडिपेंडेंस पॉलिसी बनानी है, एथिकल पॉलिसी बनानी है। इंडिपेंडेंस पॉलिसी बनाने के लिए स्टाफ का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, स्टाफ का इंडिपेंडेंस साइन किया हुआ होना चाहिए, पार्टनर्स का होना चाहिए, प्रोप्राइटर का होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जब रिव्यूअर आपके ऑफिस में आएगा और जब वो पार्ट बी के पॉइंट 2 एथिकल में आएगा, उसमें आपने उसके सामने टेबल पे पॉलिसीज और इंडिपेंडेंस और अपॉइंटमेंट रख दिया, नथिंग लाइक प्रोप्राइटर को भी मतलब आप प्रोप्राइटर पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपन क्या सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, अपने लिए क्या इंडिपेंडेंस के लिए, तो फॉर्म है नहीं, तो वैसा सबके एवरीवन हैज टू बी इंडिपेंडेंट। Audit of FS3, that is 5 years. 5 years तभी तो मैंने आगे बढ़ा दिया। सर फॉरेंसिक ऑडिट में एक्सपर्ट है सर, तभी तो मैंने वो डेटाबेस बोला नहीं, तो मैं आगे बढ़ा दिया। कुछ नया गाइडलाइन नहीं वो भी इसका टाइपो एक फर्म में 3 पार्टनर है और बेसिकली देयर आर 3 पार्टनर, तो पार्टनर है अपना ऑडिट कंडक्ट करना है, purchase between third party is responsible for his, third party is responsible for his branch and conducting audit for it. तो वो एक दूसरे का रिव्यू कैसे करें? रिव्यू तो आपसे ऑनलाइन ही हो जाएगा, रिव्यू मतलब सीधा ही आपको प्रश्न तो उसके वर्क का भी तो रिव्यू करना होता है। हाँ वर्क का review the work of the person who is engaged with will come to review, but review का आंसर ये है कि आप जो ऑडिट के टाइम पे आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, जो ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, जो चेकलिस्ट बना रहे हैं, वो रिव्यू करेगा, वो चेक करेगा। वो रिव्यू डजंट मीन कि आप ऑडिट कर रहे हो और मैं फिजिकली आके बैठा हूँ क्या ये ऑडिट बराबर कर रहे हैं। रिव्यू मीन्स जो आपका ऑडिट हो गया है, उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, जो आपने चेकलिस्ट बनाई है, वो दूसरा पार्टनर मैनेजमेंट चेक कर रहे हैं, ओके, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो वो आपको फिर से बोल रहे हैं कि ये कौन से देख लें, काउंटर चेकिंग इस काउंटर चेकिंग ऑनलाइन कर क्या है ऑनलाइन। बट आई कम टू दैट पॉइंट, बट एक चीज सिंपल चीज ये है कि रिव्यू भी अगर होता है तो इट हैज टू बी प्रूफ, तो ऑनलाइन में देयर शुड बी अ रिटन ईमेल, इट हैज टू बी प्लेस्ड इन द फोल्डर, communication should be there, it has to be proved. We have done the review that there should be proof for We'll come to review, but प्रिंटआउट निकाल के रखते हैं। तो अभी एक्सेप्टेंस अपन ने पास 25 अक्टूबर को 31 अक्टूबर ड्यू डेट है, 25 अक्टूबर को एक क्लाइंट आया कि भैया मेरा टैक्स ऑडिट करो, तो अपन अफकोर्स अपन को असाइनमेंट लेने के पहले दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, टर्नओवर कितना है, फीस कितनी है, कितना दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, लास्ट टाइम की ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं क्या क्या एप्लीकेबल है, पुराने सीए को फीस दी हुई है क्या, ये सब अपना हर कोई चेक करता है, कोई उसमें क्वेश्चन ही नहीं है कि चेक करता है कि नहीं करता है, पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता है। ये अपना एक्सेप्टेंस पॉलिसी है ना, मैं कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा तो पहले मैं ये चीज चेक करूंगा, क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करूंगा, पिछले सीए को फीस नहीं दी है, उससे पिछले सीए को फीस नहीं दी है तो मुझे कहां से फीस देगा, तो इंटीग्रिटी चेक करूंगा, बिजनेस चेक करूंगा, रेपुटेशन चेक करूंगा, अपन करते भी हैं, बट डॉक्यूमेंट कोई नहीं करता है। तो एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस तो दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस, तो ये दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन कि नया क्लाइंट आ रहा है तो उससे आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें क्या चेकलिस्ट आप यूज कर रहे हो, प्रूफ करो। आप अपन ये सब करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि वो टाइम पे मैंने क्या क्या सोचा था जब ये अपॉइंटमेंट के लिए आया था मेरे पास, तो उसके लिए अपने पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। क्लाइंट इंटीग्रिटी हैज टू बी कंसीडर्ड, फॉर्म इज कॉम्पिटेंट,
अपन देखते हैं ना कॉम्पिटेंट अपन देखते हैं ना, हाँ ये स्टाफ है, इसका अभी ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद कुछ नहीं, इसको दे देंगे, कर देगा, रात में 2 घंटा एक्स्ट्रा बिठा देंगे, अपन ये सब सोचते हैं बट डॉक्यूमेंट नहीं करते। तो firm is competent to perform engagement, firm can comply with ethical requirement। तो ethical policy में आएगा आपका क्या, लास्ट मिनट पे कोई क्लाइंट आता है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका कैसे कंप्लाई करेंगे, पॉलिसी में आएगा आपका। एंड this is we are talking only about acceptance of new client। Form 1 is expecting from us continuous client का, अपने पास एक क्लाइंट पुराना चल रहा है तो उसकी भी अपने को चेकलिस्ट बनानी है कि भाई अब उसकी रेपुटेशन में कोई डैमेज तो नहीं आ रहा है, कंप्लायंस पूरा कर रहा है ना, उसकी वजह से अपना नाम कहीं पे हैम्पर नहीं हो रहा है ना, फीस कब दे रहा है, 6 महीने में दे रहा है कि 9 महीने में दे रहा है, अपने हो क्या अफोर्डेबल है, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस बोथ ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स, तो उसमें कोई ये आंसर वैलिड नहीं है कि मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं है, जबकि फॉर्म 1 में पार्ट ए में नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नंबर ऑफ आर्टिकल कॉलम है, तो वहां अपन मैक्सिमम लोग आर्टिकल में लिखेंगे 0, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में लिखेंगे 2, 3, 4, स्टिल एचआर पॉलिसीज आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर बात करें AQMM की, तो AQMM में तो 3 लेवल आगे पहुंच गए हैं। AQMM में तो यहाँ तक क्वेश्चन है कि स्टाफ को अगर आप ओवर टाइम दिखाते हो, तो अपन सब दिखाते हैं सीजन में, तो उसको फैसिलिटीज क्या देते हो, तो आपकी पॉलिसी में होना चाहिए कि 8 बजे के बाद बैठेगा तो पिज्जा मिलेगा, 9 बजे के बाद बैठेगा तो पिज्जा मिलेगा, बट वो पॉलिसी में होना चाहिए। AQMM आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई स्टाफ को कुछ पॉलिसीज दे रहे हो क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो क्या, मेडिक्लेम दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो कोई गुनाह नहीं है, बट पॉलिसी में होना चाहिए कि हमारे फर्म की पॉलिसी नहीं है कि हम मेडिक्लेम देंगे या इंश्योरेंस देंगे। AQMM आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, परफॉर्मेंस बेस कर रहे हो, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो। तो मैं मेरा स्टैंडर्ड आंसर लिखता हूँ कि मैं तो एनुअल कर रहा हूँ, मैं किसी पे भेदभाव करता नहीं, बट देन इट हैज टू बी इन द पॉलिसी। मैं वर्बली नहीं बोल सकता कि मैं एनुअली करता हूँ, तो ये सब पार्ट होता है पॉलिसी का। तो ये HR पॉलिसीज में ये सब आना चाहिए, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। It has sufficient personnel with capabilities, competence, commitment. Issues to be addressed: recruitment, performance, career development, promotion, compensation. तो ये सब कवर होना चाहिए। The capabilities and competence are developed through professional education. अपन सब कोई भी नया असाइनमेंट आता है, अभी बैंक ऑडिट आएगा, अपन अपने स्टाफ को 2 घंटे का पूरा ब्रीफिंग देते हैं, इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो हाउ यू विल प्रूव कि अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाफ का ट्रेनिंग दे रहे होता है। वो आजकल थोड़ा सोशल मीडिया आ गया है, तो कई फॉर्म्स में ये रिप्लाई मिलता है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बट व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर शेयरिंग द डेटा या बाहर का ज्ञान, फ्री वाला ज्ञान, इट इज नॉट फॉर अपडेशन ऑफ स्टाफ। तो हाउ यू विल प्रूव, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस कि भाई अपडेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुद को अपडेट होना पड़ेगा, सीपी है उसके पास तो दिखाने के लिए अपडेटेड हो। स्टाफ को अपन सब ट्रेनिंग देते हैं, मैं डिनाई करता खुद भी अकाउंटेंट देते, पर डॉक्यूमेंट नहीं है अपने पास, कैसे प्रूफ करेंगे। तो हर चीज ऑनलाइन मत करो, मेरे हिसाब से, माय ओपिनियन है, आई एम शेयरिंग विद यू। हर चीज ऑनलाइन मत करो, एक रजिस्टर बनाओ, फिजिकल रजिस्टर, उसमें कौन सा वेबिनार आपने अटेंड करवाया, उसका डेट, नाम वेबिनार का लिखो, और कौन से स्टाफ ने अटेंड किया उसमें साइन करो, एंड मेक इट अ रेगुलर हैबिट। तो इससे आप आराम से, ये आपका रजिस्टर दिखा दिया, उसके बाद स्टोरी एंड्स, नो मोर क्वेश्चंस आस्क्ड, बट यू हैव टू प्रूव। Here the document plays a very crucial and important role. Continuing professional work experience, coaching by senior partner. आपने ब्रीफिंग दी तो रजिस्टर लिखो, ब्रीफिंग बाय सीनियर पार्टनर सो एंड सो, और जिन बच्चों ने अटेंड किया, जिन आर्टिकल्स या एम्प्लॉइज ने अटेंड किया, उनका साइन लो उस दिन कि हाँ ये, तो ये दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर
क्वालिटी, ये देखो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, where internal technical training resources are unavailable, the firm may use a suitably qualified external. एक्सटर्नल अपन करते भी हैं, टैली का वेबिनार अटेंड करवाते हैं, एक्सेल का वेबिनार अटेंड करवाते हैं, काफी फ्री वेबिनार्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूट के, जो अपन बच्चों को बोलते हैं कर लेना अटेंड, बट रिकॉर्डेड नहीं। हाउ यू प्रूव कि ये बच्चे ने ये अटेंड किया? तो उसका रजिस्टर बनाओ, एक स्टाफ की ड्यूटी बनाओ कि जो जो अटेंड करते हैं इट इज योर ड्यूटी, एंड यू कीप अ हैबिट ऑफ चेकिंग। आप चेक नहीं करोगे, मालूम पड़ा रजिस्टर बना दिया और अपडेटेड नहीं, ठीक है ना? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो अभी एंगेजमेंट अपन सब ऑडिट करते हैं, अपन सब अच्छा ऑडिट करते हैं, तो अपन सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं, वी डोंट लीव एनीथिंग, बट हाउ यू विल प्रूव? तो उसमें वर्किंग पेपर्स में वो ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस है, वो ऑडिट प्रोग्राम में हॉटस्पॉट्स में क्वेरीज लिखी हुई है, उससे प्रूव नहीं होगा। कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, कारो चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ। जिस कंपनी में कारो एप्लीकेबल है, बहुत सिंपल है कारो चेकलिस्ट बनाना। जिस कंपनी में कारो एप्लीकेबल है, कारो के क्वेश्चन को क्वेश्चन में डाल दिया, आंसर में यस नो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल हो गई चेकलिस्ट। इट फॉर्म्स अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, आर यू गेटिंग इट? मैं थोड़ा लाइट करने के लिए हर जगह पे एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि मेरे सीनियर ने मुझे बोला मैंने ज्यादा एग्जांपल मत दिया था, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट अ बिट लाइटर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की मैं इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात आई तो मैंने एक ही चीज बोली, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। उसका रीजन ये है कि मेरे पास एक कंपनी है फार्मागस की, लास्ट 15 ईयर्स से, उसका प्री कोविड उसका केस एनसीएलटी में गया, अहमदाबाद एनसीएलटी में, दे आर लुचू पीपल, तो शाह सर ने गाँव का, और उनका केस एनसीएलटी में गया, तो दे वांटेड कि अंकुश यू आल्सो अपीयर विद द काउंसिल, तो मैं भी जाता था वहां पे अहमदाबाद में। तो इट वाज द केस वाज ऑफ ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। तो इस केस में क्या होता है, एक दिन सामने वाला मेरी शर्ट काली करेगा, नेक्स्ट डे मैं उसकी शर्ट काली करूंगा, अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉडी सेटलमेंट होता है। तो उस दिन उसकी बारी थी मेरी शर्ट काली करने, भाई साहब उसने मेरे 4 साल के फाइनेंशियल निकाल के टेबल पर रख दिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के, और बोलता है मैं कंपनी में 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, ये जो तुमने नीचे के 3 नाम लिखे हैं इनका रिलेशन क्या है? मैंने देखा मेरा अंकल 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 लिखा हुआ था, ठीक है चुप रहा, बाद में आंसर देंगे। तो बाहर आया तो मैंने मेरे स्टाफ को फोन किया अहमदाबाद से, मैंने बोला भाई वो तूने 3 नाम डाले हैं उनका रिलेशन क्या है? बोलता सर मुझे क्या मालूम, मैं तो शाह सबने देखा और डाल दिया। और अपन ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, लास्ट टाइम था ना, तो उसके बाद से मैंने रिलेटेड पार्टी का एक अलग से चेकलिस्ट बनाई, मैनेजमेंट को भेजता हूँ, मैनेजमेंट साइन करती है कि हाँ ये मेरा रिलेशन है, और बस मेरा एक डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाता है। तो इट वाज जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट लाइट, बट ये हकीकत में हुआ है मेरे साथ, और ये सबके साथ हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट अपने को ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, ये डॉक्यूमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सो वी हैव टू प्रूव। तो उस कंपनी को जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, जो जो एप्लीकेबल हैं, वो आपको करने हैं, टिक करना है, वो यहाँ मैंने वेरीफाई किया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन। फॉर्म 1 आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कोई मैटर में अटक जाते हैं तो कंसल्टेशन लेते हैं क्या आउटसाइड? अलाउड है, यस लेते हैं, नहीं लेते हैं तो नहीं लेते, ठीक है कोई बात नहीं, बट वो वी हैव टू लिखता है। फॉर्म 1 आपसे पूछता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, बोलता है अगर इंटरनल टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हाउ यू रिजॉल्व? तो वी हैव टू आंसर इट। ये बोलते हैं मेजॉरिटी दिस, बट यू हैव टू आंसर। मैं लिखता हूं कि देयर इज नो डिफरेंसेस व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, ये मेरा स्टैंडर्ड लाइन है, मैं वो लिखता हूं, बट यू हैव टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन, यू कैन नॉट से एन, यू कैन नॉट से नो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में वो नीचे वापिस से पूछता है कि फिर भी तुमने समझा है, फिर भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा तो क्या करते हो आप? तो फिर मेरा आंसर ये है कि मेरे को मैनेजमेंट को समझा के रिपोर्ट क्वालिफाई करनी,
पर ये आंसर्स हैं, तो ये क्वालिटी फॉर्म 1 और पीआर रिव्यू अपने से एक्सपेक्ट कर रहा है, इनके आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, rather than our regular working papers. Engagement documentation. एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम किसकी आ रही है? एनओसी। मतलब मैं वो केसेस नहीं बोल रहा हूँ जो एनओसी नहीं ले रहे हैं, मैं वो केसेस बोल रहा हूँ जो एनओसी ले रहे थे लेकिन ईमेल खेल रहे। मैंने ईमेल किया, सर मुझे एनओसी दे दो, आपने मेल में रिप्लाई कर दिया, दे दिया, और जब रिव्यूअर आता है, सर लिया था लेकिन मेल ही नहीं मिलता है। भाई अपन सब जीमेल वाले हैं, 15 GB वाले, कब कब डिलीट हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको फोल्डर में सेव करो। अब आधा घंटा आपका पीआर रिव्यू चल रहा है, आउटसाइडर आके बैठा है, आप आधा घंटा से ईमेल ढूंढ रहे हो, तो आप समझ लो दिमाग में कि वो क्या इंप्रेशन होएगा, वो क्या सोच रहा होगा आपके बारे में। तो ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि एनओसी मिल ही नहीं रहा। सर मेल में आया था, मेल में आया था, मेल में आया था, वो उसका स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड इज एडीटी वन, सर कंपनी सेक्रेटरी के पास पड़ा है। क्यों कंपनी सेक्रेटरी के पास पड़ा है? इट इज अवर लेटर ना, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, मेरे पास मेरे फाइल में एडीटी वन नहीं है, उसका चलान नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स लो, बी केयरफुल विद दिस डॉक्यूमेंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और एग्जांपल दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल साइन रखो अपने पास। अपन सबको मालूम है अपन डीएससी लगा के कैसे अपलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइन फाइनेंशियल सब। मैं एक रिव्यू करने गया 22-23 की पार्टनरशिप फॉर्म थी, उसमें दो पार्टनर के नाम लिखे हुए थे और यहाँ पे सीए का नाम लिखा हुआ था। सीए ने साइन किया हुआ, दोनों पार्टनर ने साइन नहीं था। तो मैं बोला पूरा सर ये अनसाइन है। तो वो मुझे बोलता है बोलता अंकुश जी 3 दिन से फॉलो अप कर रहा हूँ। अरे मैं बोला सर 3 साल हो गए। You getting it? We all know how lethargic we are. तो मत करो, है ना? This creates a doubt and very bad impression when ठीक है वो कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा, मैंने भी कभी आज तक नेगेटिव रिपोर्ट किसी के लिए नहीं की है, but it doesn't create आपका आप इतनी सारी पॉलिसीज दिखाओगे और एक सडनली अनसाइंड बैलेंस शीट दिखा दोगे तो आप समझो। मॉनिटरिंग, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पीएनपी। वो 6 चीज है, वो 6 चीज के 6 पीएनपी बनेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका पीआर रिव्यू के सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। The firm should establish PMP to ensure that the system of quality control are relevant, educate। तो मॉनिटरिंग में सर का जो क्वेश्चन था और रिव्यू जो है, रिव्यू सब करते हैं। मैं प्रोप्राइटर हूँ और जब मैंने कोई फाइनेंशियल मेरे फाइनल किए और गलती से उस दिन जोड़ा जी मेरे ऑफिस में आ गए, मैं 100% उनको दिखाऊंगा सर एक बार रिव्यू कर लो ना प्लीज। पार्टनरशिप फॉर्म्स में तो होता ही है कि भैया सीनियर पार्टनर बैठा है, भले अपन कितने भी सीनियर हो गए हो, एक सीनियर पार्टनर बैठा है, सेकंड पार्टनर बैठा है, सब रिव्यू कर लो, 10 मिनट देखता हूँ आप रिव्यू कर, तो होता है। बट प्रूफ कैसे करोगे? और यू प्रूफ कि रिव्यू हो रहा है, तो रिव्यू पार्टनर को बोलो रिव्यूड बाय, ड्राफ्ट में बोलो रिव्यूड बाय, मेक इट अ हैबिट। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग? ये सब चीज अपने जो अपन बात करते हैं, ये सब चीज अपने को डॉक्यूमेंटेड करनी है। अपन सब कर रहे हैं, ये नहीं बोलता हूँ कि अपन ये सब नहीं कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो ये प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब सिंपल अपन लेट्स फॉरगेट फॉर्म 1। मॉनिटरिंग मतलब कि मैं मेरा स्टाफ काम कर रहा है, वो मैंने मॉनिटर किया या रिव्यू किया या वेरीफाई किया, तो अपन एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम में स्टाफ के कमेंट्स रहते हैं, अपने में से किसका भी साइन नहीं रहता है नीचे वेरीफाइड। शायद गूगल से लिया होगा तो कॉलम भी रहता है नीचे वेरीफाइड बाय, लेकिन उसमें ना अपना नाम रहता है ना अपना साइन रहता है। तो हाउ विल प्रूव कि इट वाज मॉनिटर्ड, इट वाज वेरीफाइड? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये ऑटोमेटिक दिस विल कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स which will sail through very smoothly for peer review, and this is essential also, this is essential also। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोपराइटर और लिस्टेड कंपनी करते हैं तो वो नफा का कोई फॉर्म भरना होता है। तो नफा का प्रोपराइटर था, लिस्टेड कंपनी करता था, फर्स्ट टाइम नफा का फॉर्म भरा, तो उसमें लिखा था कि आपका वो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। तो इसको प्रोपराइटर को लगा, उसने अज्यूम किया कि यार यहाँ पे कोई ना कोई नाम लिखना बहुत जरूरी है, वरना नफा का नोटिस आ जाएगा। तो उसने उसी की एक आर्टिकल ट्रेनिंग जो सीए बन गई थी और प्रैक्टिस कर रही थी, उसको फोन लगाया, बोले तेरा नाम राजू क्या है? वो बेचारी कहीं ट्रेवल कर रही थी, उसने बोला यस सर मुझे पूछने की कहाँ जरूरत है, नाम डाल दिया। 2 साल बाद वो छोरी को नोटिस आ गया कि आप ये कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर हो, टू द क्वालिटी कंट्रोल। वो लड़की को एक दिन तो ये सोचने में लगा कि ये कंपनी आई कहाँ से मेरे पास, आप समझे? तो कहीं ना कहीं से वहां से जो लेटर्स आ रहे हैं, लव लेटर्स आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिया हो इसको रिस्पॉन्सिबल। पर मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, मैं इसी साइड हूँ, बट थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने बताया आपको, ये 6 चीज अपन ने डिस्कस की। तो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है द फर्म शुड एस्टैब्लिश द पीएनपी, लीडरशिप, एथिकल, एक्सेप्टेंस, एचआर, एंगेजमेंट मॉनिटरिंग। ओके, तो ये आपका 80% डॉक्यूमेंट्स ये होता है, एंड इसमें से अपन ने 50% भी इंप्लीमेंट कर दिया, तो nobody can touch us. Forget Nafra, forget anyone, nobody can touch us. चलिए जोर से पढ़िए आप प्लीज, खड़े होके पढ़िए जोर से। So what we believe you did. माइक दीजिए। Please continue audit if there is nothing in your working paper file you show for it. Everyone agrees? Yes. Sure. तो ये अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया वो यही डिस्कस किया है कि अपन काम सब कर रहे हैं, तो मेरे को किसी पे भी डाउट नहीं है, बट रिकॉर्ड नहीं प्रूव नहीं कर सकते कि अपन ने काम किया। और ये प्रूफ करने के लिए ना वर्किंग पेपर काम आने वाला है, ना वो ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस काम आने वाला है, ना कुछ। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एंगेजमेंट लेटर बनाओ। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फॉरगेट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। एंगेजमेंट लेटर में आपकी फीस लिखी जाती है जो दोनों पार्टी साइन करती है। तो एक बार वो डॉक्यूमेंट आ गया तो इट बिकम्स अनडिस्प्यूटेड फीस बिकॉज इट वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज। तो फायदा अपना ही है, बड़ा अपना एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। एंगेजमेंट लेटर बनाओ, ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करो। बाकी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो 20% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्लाइंट नाम होना चाहिए, इंडेक्सिंग होना चाहिए, फाइलिंग प्रॉपर होना चाहिए, वो सब जो अपन रेगुलर जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोटिंग किए हैं। फाइल रेफरेंस होना चाहिए, फाइल रेफरेंस, इनिशियल ऑफ द मेंबर्स। ये सब क्यों कर लिखा जा रहा है? ये सब इसलिए लिखा जा रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, जब रिव्यूअर या कल आपको भी कोई चीज ढूंढनी है तो वो इजी होता है ढूंढने के लिए। जनरल गाइडलाइन क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस है आधा अधूरा पड़ा है, सॉरी ऑडिट प्रोग्राम है आधा भरा है आधा नहीं भरा, बाद में बोलते हैं ये एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं तो क्रॉस कर एनुअल मेक इट कंप्लीट। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंडेक्सिंग, प्रॉपर नंबरिंग, राइटिंग ऑफ क्वेरीज, डिस्कसिंग विद सीनियर्स। डिस्कस किया सीनियर से तो सीनियर को बोलो सर साइन कर दी, जिस आर्टिकल में बनाया है उसको बोलो साइन कर दिए तूने बनाया है। रजिस्टर्स में एक और जो प्रॉब्लम आती है फॉर्म 1 भरने में, जिसमें पीयू एक हफ्ता भी ले लेता है, वो है लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। क्योंकि लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैज टू बी रिकंसाइल्ड विद द यूडी। और अपन सब स्मार्ट है, किसी ने भी यूडी रजिस्टर बनाया नहीं है, लिखता है ना ऑनलाइन पोर्टल में, बट फिर क्लाइंट उसमें कौन से क्लाइंट का अपन ने किया है वो रिकंसिलेशन होता नहीं है या जान निकल जाती है। या दूसरी स्मार्टनेस ये है कि मैं यूनिक जनरेट करता हूँ और रिस्पेक्टिव क्लाइंट को फोल्डर रखते हूँ। अरे स्टिल फोल्डर में लगता है तो कैसे खोलना पड़ता है, यूनिक मैच करना पड़ता है, क्लाइंट का नाम लिखना पड़ता है। तो एक एक्सेल में रजिस्टर बनाओ ना, सिंपल सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ द क्लाइंट, पर्टिकुलर किस टाइप का यूनिक है और यूनिक में कॉपी कर दो।
उसको सॉर्ट करोगे आपकी क्लाइंट लिस्ट आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। लेकिन ये क्लाइंट लिस्ट अगर मैं आज भी आपको बोलूं तैयार करने के लिए तो मिनिमम यू विल टेक 5-6 days। तो वहां अपन हिम्मत हार जाते हैं, वहां अपन बोलते हैं यार पीआरई की बहुत जल्दी प्रोसेस, फॉर्मूला बनाने में इतना टाइम लगती है। तो टाइम इसलिए लगा तो कि अपन प्रॉपर अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं एक्सेल में बनाता हूँ, पता नहीं मुझे किसने सद्बुद्धि दी थी, जब से यूबी आया तब से मैं एक्सेल में बना रहा हूँ। तो जो सीरियल नंबर है वो मेरा यूबी का कंट्रोल नंबर देता है, जो नीचे वो लास्ट कॉलम होता है ना कि वो विच विल नॉट बी डिस्प्लेड, तो वहां क्लाइंट का नाम कुछ नहीं, वहां सीरियल नंबर मेरी एक्सेल से। तो मेरा तो 5 मिनट में क्लाइंट लिस्ट बन जाती है, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गए मेरे लिए तो लेकिन पीयूष को प्रॉब्लम आ रही है, पीयूष को क्लाइंट लिस्ट बनाने में, ग्रॉस रिसीप्ट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद तुम लोग ये अपन सब इसमें पहुंचेंगे, पार्ट बी में पहुंचेंगे, पहले पार्ट ए में ही अपन अटके रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करो, अपने काम को अपनी खुद की पॉलिसी बनाओ, थोड़ा उसको इजी करने की कोशिश करो आपके फॉर्म के हिसाब से। स्टाफ अटेंडेंस, स्टाफ पेइंग रजिस्टर मैंने बोला वो बनाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो बनाओ। क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल मैंने बताया, सबसे फर्स्ट चीज विजुअल आपके ऑफिस में आएगा वो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल में आएगा। इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंस पॉलिसी, ज्वाइनिंग, फॉर्म क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन में अपॉइंटमेंट लेटर, प्रेडिक्टिव वन, एनओसी, ये सब आपके फोल्डर में होना चाहिए। ये अपने को मेल में नहीं ढूंढना है, ये अपने फोल्डर में होना चाहिए। एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए, ऑडिट प्लान होना चाहिए। ये मैंने बीच में डिस्कस करते करते ये सब चेकलिस्ट मैंने डिस्कस की, कागज चेकलिस्ट बना लो, बहुत सिंपल है बनानी। टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट बना लो, बहुत सिंपल है बनानी। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर डॉक्यूमेंट्स। एक में मैंने बताया आपको 3 में डिवाइड होता है, 600 है, लेवल मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। एक का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपने यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी के पास भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सबके माइंड में है। बट AQMM का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डज द फर्म हैज अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो अपन सबके पास विजन और मिशन दिमाग में है कि हमको टॉप 4 बनना है, बट डॉक्यूमेंटेड तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये स्कोर्स हैं, टोटल 600 के स्कोर्स हैं। तो 3 लेवल पे डिवाइडेड है, 280, 240, 80। Or any question? Sir, what is the time required by you for making you? What is the time taken by you for making? कितना दिन लगता है आपको पीयर रिव्यू करने में, कितना टाइम लगता है? ये मैक्सिमम 1 मंथ, 1 मंथ में तो आपको इंस्टीट्यूट से मेल आ जाएगा जी। और वो जो एक क्वेरी की एक्सेप्शन की जो एक क्वेरी थी कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, फर्स्ट कम फर्स्ट सिनेरियो में जो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आएगा, मेमो नहीं आएगा। लेकिन जहां अपन ने गलत किया है, अपना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया 31 मार्च को, अपन ने नया अप्लाई किया 1 जुलाई को, और बीच में अपन ने 31 मई को बैलेंस शीट साइन कर दी, क्या मालूम पड़ेगा? तो वहां वो मालूम है, वहां एग्जैक्ट डेट मालूम है, एग्जैक्ट कंपनी का नाम मालूम है कि इस कंपनी का LR अंकित गुप्ता एंड एसोसिएट ने इस डेट में साइन किया है और वो पीआर रिव्यू नहीं है। उन केसेस में मेमो आता है, काइंडली प्रोवाइड अ जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन। बाकी मैंने नहीं देखा आज तक किसी का पीआर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं आया हो। ये वाले केस में भी मैंने एक का पीआर सर्टिफिकेट दिलाया, बिकॉज उसमें उसकी गलती नहीं थी, उसका गैप 9 मंथ्स का था, उसने 2 LR साइन कर दिए थे बीच में 3 कंपनी के, बट उसका पीआर रिव्यू चला ही 9 मंथ्स ड्यू टू सम और द अदर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रीजंस। एंड द बेस्ट पार्ट वाज ही वाज हैविंग एवरीथिंग इन ईमेल। तो उसका प्रॉपर लिखता है ड्राफ्ट किया, हर एक ईमेल को अटैच किया, सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी अटैच की, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और भेजा, तो ही गॉट अ क्लीन चिट पीआर रिव्यू सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी खत्म होने से कितने पहले वो इंस्टीट्यूट टेक्स के 6 महीना पहले आपको मेल आ जाएगा। सर 2 क्वेश्चन है। पहला, अगर मैं आज की डेट पर क्लियर करवा के देती हूँ और बाय मिस्टेक, जैसे अभी मुझे पता चला कि कोई ट्रस्ट का मैंने ऑडिट किया था
तो मुझे मेरे पिछले साल में मेरे पास मुझे 1 जुलाई 2025 को ही मेरे पास पीयर रिव्यू होना चाहिए। मैंने रिव्यू ऑलरेडी ऑडिट कर दी, मेमो आ सकता है। तो उसके लिए मेमो लेकिन मेमो आएगा तो ठीक है सर, लेकिन मेरी टाइम को कोई परेशानी नहीं हुई एकदम से। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन कि ये जो पॉलिसीज मतलब आपको ये सॉफ्ट कॉपी देता हूँ किसी तरह की पीयर रिव्यू कि हार्ड कॉपी ऑफ स्टैम्प एंड साइन, बाकी योर अच्छा, तो if it is digitally signed, उसका क्वेश्चन है फॉर्म पर में लास्ट में क्वेश्चन है whether the documents are in soft, hard or hybrid, वो भी क्वेश्चन है मतलब but everything can मतलब what I believe, I am very poor in this digital world, but what I believe is कि everything cannot be in soft copy, that I जैसे fly जो staff का रजिस्टर बनना है और staff का DSC तो है, तो साइन कैसे करोगे, तो प्रूफ कैसे करोगे, फिर तो मैं आऊंगा, मैं तो कहूंगा ये तो मेरे को दिखाने के लिए बोर्ड में बना दिया खाली टाइप कर। तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन नॉट बी डिजिटल, ऑफ कोर्स 80% 85% of the documents can be digital, but some documents need to be there. Ultimately you have to prove it, you have to make them satisfied. Last but not the least, reviewer आता है तो reviewer की बाउंड्री लगी, वो बाउंड्री लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने ब्लड में क्या है कि मैं क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, इवन दो आई एम रॉन्ग। तो वैसा ही जब वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल तो अपन यस सर यस सर यस सर, तो वो सॉफ्टली स्टैंड लो बट स्टैंड लो। जैसे फॉर एग्जांपल कई रिव्यूअर्स हैं अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद टाइम नहीं तो बोलते हैं फाइल्स मेरे ऑफिस में भेज दे। कैसे फाइल ऑफिस में भेज दूं, मेरी फाइल्स है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, बट सीएस जा रहे हैं टैक्सी ले रहे हैं, यू कैन से ना अपना अपॉइंटमेंट तो एक्सेप्ट किया है, अभी भी दे दो राइटिंग में, we will state the new review. So you should know the boundary, the scope of review. Reviewer cannot take a single document from your office. Review cannot even click a photo. Reviewer आता है, एक केस में reviewer आया, उसको HR पॉलिसी अच्छी लगी, वो बोलता है HR पॉलिसी को अपने जेरोक्स दे मैं भी इम्प्लीमेंट करूं। अपन दे रहे हैं, हाँ अपन दे रहे हैं, बट यू शुड नो द बाउंड्री एंड जहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, बट जहाँ पे स्टैम्प देना है पोलाइटली, वो भी अपना प्रोफेशनल कलीग है तो पोलाइटली सर दिस इज नॉट अ रेवेन्यू का कई कई रिव्यूअर्स आके रेवेन्यू का ब्रेकअप मांगते हैं, जो आपने वो रेवेन्यू से फीस होती है वो बोले इसका रिकंसिलिएशन थे, वो कैसे रिकंसाइल होएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट में? चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक्स जो है वो कैश बेसिस पे है, मैंने जो उस साल में साइन किया है नॉट नेसेसरी कि मुझे उसकी फीस मिली, प्लस मुझे 3 साल की फीस एक साथ मिलती है, तो वो रिकंसाइल करके हो जाएगी। कई कई रिव्यूअर्स आते हैं इसका रिकंसिलिएशन दो, और वो कहाँ लिखा है कि मुझे रिकंसिलिएशन दे, अब मुझे दिखा दीजिए कहाँ लिखा है, आपको रिकंसिलिएशन ना कर दे, थोड़ा सा पोलाइटली स्मूथली हो जाता है। ओके, एनीथिंग एल्स? Thank you, Ankush, for giving such important issue and clarify all the things with regards to peer review. Before giving vote of thanks, one announcement for the help of Jimmy Miller and our CA. With guidance and solutions are here. By ESC in very nominal way. Now I request proprietor Rohan Punjabi ji to say something about it. Myself, audible? Yes, yes. Myself, Rohan Punjabi. I started my digital signature work service in 2011. I give service pan India on retail basis as well as on franchisee basis. The one who want to avail single DSC can contact me. I provide foreign DSC at a very competitive price
and I provide DAC franchisee at very competitive terms. My number will be shared later on.